Assalamu alaikum and welcome to today's podcast, Exploring Stuttering with Sabreen Noor Ali and Shiraz Iqbal. आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो टॉपिक है जिसका हम सबको बेसब्री से इंतज़ार था और वो है एडल्ट इंट्रोडक्शन टू एडल्ट स्टटरिंग. In our initial podcast, we talked about what is stuttering and we discussed some facts and myths regarding stuttering. फिर उसके बाद हमने बात की childhood stuttering की. We looked into factors affecting childhood stuttering and we looked at the approaches that are used with childhood stuttering. We looked at how environment and parents can affect stuttering and how it can benefit stuttering. फिर उसके बाद we moved on to stuttering in teenagers and उसमें हमने बात की कि किस तरह stuttering इस age में identification formation of self को affect करती है. Today we will be talking about adult stuttering. This is the age when a person enters the age of independence. They look out for jobs and they look out for relationships and other similar things in this age. So let's jump into the topic and start by introducing our guests. So our first guest for today is Sabreen Noor Ali. Sabreen Noor Ali is a qualified speech and language pathologist. She has worked at various settings and with variety of disorders of children and adult both. She has completed her bachelor's and master's degree in speech and language pathology from Ziauddin University, College of Speech, Language and Hearing Sciences. Ms. Sabreen is currently serving as a speech and language pathologist and senior lecturer at Ziauddin University and at Uran Pediatric Therapy Services. She has previously worked at Aga Khan University Hospital and Dow University Hospital. She has recently been appointed as the General Honorary Secretary of Speech and Hearing Association of Pakistan, along with her voluntary services at Pakistan Girls Guide Association as a trainer. So let's have Ms. Sabreen Noor Ali with us. Assalamu alaikum. Hello, how are you? Your mic is on mute. How are you, Savika? I'm good. How are you, Ms. Sabreen? I'm fine. Okay, so let's have our next guest for today. That's Mr. Shiraz Iqbal. Mr. Shiraz Iqbal, as you all know, is the founder of Amrit Circle. Assalamu alaikum, Mr. Shiraz. Assalamualaikum. Wa alaikum assalam. How are you? कैसे आप लोग? अल्लाह का शुक्र. It's good to have you both with us. Thank you. Okay, so let's start with the topic. I would like to start with you, Ms. Sabreen. So my first question to you, Ms. Sabreen, would be that introduce us to what adult stuttering is and how it's different from what childhood stuttering is. So, adulthood stuttering and childhood stuttering is the only difference of the age. Like if you enter the age of adulthood, that is above 18 years, आप 18 साल से ऊपर की एज में निकल जाते हैं और तब भी आप स्टटर करते हैं तो आप उसे कहेंगे कि you are in a phase of adulthood stuttering. And how it is different from childhood stuttering, the major thing is of the awareness. An adult is aware that he is stuttering, जबकि बच्चा जो है उसे नहीं पता होता, कभी कभार पता होता है, कभी नहीं पता होता कि वो स्टटर कर रहा है या नहीं. With the age you get the awareness. So it is like that I know there is a lizard in the kitchen, ठीक है, and how am I going to react with the lizard there is me. अगर मुझे नहीं पता कि किचन में लिजर्ड है तो फिर मैं उसको किस तरीके से रिएक्ट करूंगी, दैट इज अ डिफरेंट थिंग. सो इसी तरीके से चाइल्डहुड स्टटरिंग एंड एडल्टहुड स्टटरिंग इज डिफरेंट. जब एक एडल्ट स्टटर करता है सो दैट इज नॉट ओनली द लैंग्वेज, इट इज अ बैगेज ऑफ इमोशंस और लोगों के रिएक्शंस जो कि इसके माइंड में बिल्डअप होना स्टार्ट हो जाते हैं. हाउएवर द बच्चा इज वेरी नाइव, ही डजंट नो, या फिर उसे पता भी नहीं, मतलब उसे जैसा सिखाया जा रहा है वो वैसे बात कर रहा है. बट विद द एज वो जिस तरीके से आप बात करना सीखते हैं, लोगों के रिएक्शंस को लेना सीखते हैं,
आप बड़े होते हैं, आपको पता है आपको किसके सामने क्या बोलना है, किसके सामने क्या नहीं बोलना है. एंड एट दैट पॉइंट व्हेन यू स्टटर इन फ्रंट ऑफ पीपल और व्हेन यू स्टटर इन फ्रंट ऑफ लोग, आप तब हकलाहट करते हैं, तब हम उसे एडल्टहुड स्टटरिंग कहेंगे. टू मी इट इज दैट. Okay, so the basic difference is कि अब जब एडल्टहुड में एंटर होते हैं तो हमारे पास अवेयरनेस ज़्यादा होती है, एंड अवेयरनेस इज़ नॉट ओनली कि मैं इस तरह से बात कर रही हूँ, बट इट्स ऑल्सो हाउ पीपल आर रिएक्टिंग टू द वे आई एम टॉकिंग. हाउ पीपल आर लिसनिंग टू मी. मुझे पता है कि सामने वाला मेरी बात को किस तरीके से जवाब देगा या किस तरीके से परसीव कर रहा है. दैट इज व्हेन आई एंटर द एडल्टहुड, और तब मैं हकलाहट का शिकार. सो जो हमारे जो परसेप्शंस होते हैं कि जो लोग हमारी स्टटरिंग पे किस तरह रिएक्ट कर रहे हैं, यानी हमने अपने माइंड में एक क्राइटेरिया बनाया हुआ होता है कि लोग इसी तरह से रिएक्ट करेंगे. Okay, so it is like what you think of people will be entirely different from what Shiraz is thinking right now, and it is entirely different to what I am thinking of people. So जब मैं लोगों से बात करती हूँ तो मेरे दिमाग में ऑलरेडी एक इमेज है कि यार सामने वाला बंदा मुझसे ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि मैं उसे ये जवाब दूँ, और मुझे ये भी पता है कि यार शायद वो इस तरीके से मेरे बारे में सोच सकता है. सो जब आप इस एज में है, जब आप 18 साल से बड़े हैं, आपको काफी सारी उन चीजों का अंदाजा हो जाता है जो कि एक्सप्लिसिटली सामने वाले पे नजर नहीं आ रही, बिकॉज यू नो कि यार उसके दिमाग में ये चीजें चल रही होंगी. सो हाउ यू रिस्पॉन्ड टू दैट सिचुएशन, हाउ यू रिस्पॉन्ड टू दैट इन्वायरमेंट इज एक्चुअली व्हाट आई एम बिल्ट ऑफ. इसीलिए मैं इस तरीके से, अब जैसे आपसे बात कर रही हूँ, शायद वो मेरी अम्मी से बात करते हुए एक डिफरेंट टोन होगा. इसी तरीके से जब मैं एक पेशेंट से बात करूंगी तो वो एक डिफरेंट होगा. दैट इज व्हाई एज एन एडल्ट व्हेन आई टॉक टू पीपल, और इट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट दैट माय स्टटरिंग सिवियरिटी विल आल्सो डिफर. मैं किसी से बात कर रही हूँ तब शायद मैं अलग तरीके से करूंगी, मैं किसी और से बात कर रही हूँ तब शायद मैं अलग तरीके से करूंगी. एंड इट इज नॉट ओनली माय स्पीच, इट इज अबाउट इन द ब्रेन दैट हाउ एम आई थिंकिंग, कि सामने वाले को मुझसे क्या सुनना है और मुझे उसे क्या बताना. Yeah. Okay, Mr. Shiraz, would you like to add on to it something? मैं अपना एक्सपीरियंस जो है वो बिल्कुल वैसे ही जो भी साबरीन ने बताया. व्हेन आई वाज किड, और जब टीनेजर में थोड़ा सा एहसास होता है, अगर स्कूल में इतना आपको प्रेशर हो कि आपको पढ़ने का प्रेशर होता है, अगर व्हेन यू क्रॉस 17 एंड 18, तो आप पे प्रेशर होता है, यू हैव टू अर्न एंड यू हैव टू गो आउटसाइड द वर्ल्ड. तो उस वक्त फिर आपको होता है कि यार मेरी चीज ये अंदर है जो मैं बहुत टाइम से छुपा रहा था. मैं अपना एग्जांपल बताता हूँ कि मैंने इसको कभी इतना सीरियस नहीं लिया व्हेन आई वाज 15-16, बट जब 18-19 में आई वाज जब मेरा फर्स्ट जॉब इंटरव्यू, आई वाज यार ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो मैंने कभी इसको फेस आउट नहीं किया. आई वाज चल हाँ ये तो कुछ भी नहीं है. तो बाद में था तो नहीं, ये एक मैटर करता है. और फिर होता है आपके पास बुरे एक्सपीरियंस होते हैं कि लोग ऐसा रिएक्ट करते हैं कि नहीं, दे फील है आपके में अंदर कुछ बहुत बड़ा मसला है. So, यानी हमारे जो एक्सपीरियंसेस होते हैं दैट एड्स ऑन कि हम अपनी स्टटरिंग के बारे में किस तरह से सोच रहे हैं, उस पर किस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं. राइट. सो मिस साबरीन, कैन यू प्लीज ऐड ऑन टू द आइसबर्ग थ्योरी? कैन यू प्लीज एक्सप्लेन व्हाट द आइसबर्ग थ्योरी इज एंड हाउ जो हमें दिख रहा होता है स्टटरिंग के बारे में, और एक स्टटरर को जो खुद को पता होता है अपने स्टटरिंग के बारे में, दैट इज मच मोर देन व्हाट द रियलिटी इज. एग्जैक्टली. सो इट इज लाइक अगर आपने पानी में कभी बर्फ देखा, सो आइसबर्ग इज एक्चुअली द बर्फ दैट इज इन द वाटर. सो आपको ऊपर तो बर्फ नजर आ रहा है, लेकिन पानी के नीचे वो कितना बड़ा है वो आपको नहीं पता. इसी तरीके से जब आप किसी बंदे से बात करते हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ ही हैज स्टटरिंग और इफ ही डजंट हैव स्टटरिंग,
उसके पीछे कितना बड़ा बैगेज है, मतलब फियर है, एंजाइटी है, डिनाइल है, गिल्ट है, शेम है, वो सारी चीजें पानी के नीचे हैं, आपको नहीं पता कि वो क्या है। आपको सिर्फ वो पानी के ऊपर की तह दिख रही है जो कि आपको एज अ पर्सन सामने से नजर आती है। सो जो सारी चीजें मेरे दिमाग में है, वो बर्फ जो कि पानी के नीचे है, that actually builds on to what is up on the water. अगर मैं डिनाइल में हूँ, आई डू नॉट एक्सेप्ट कि यार मुझे कोई मसला है, तब मैं जब सामने बंदे से बात करूंगी तो वो एक डिफरेंट तरीका होगा। जबकि अगर मैं ये चीज एक्सेप्ट कर लूँ कि नहीं यार मुझे मसला है और अब मुझे थोड़ा टैक्टफुली बात करनी है ताकि सामने वाले को पता ना चले कि मुझे कोई मसला है, दैट इज इंटायरली अ डिफरेंट सेंस ऑफ कम्युनिकेशन। अगर मैं एक्सेप्ट करके बोलती हूँ कि नहीं यार देयर इज अ थिंग दैट कैन हेल्प मी, सो आई माइट गो टू थेरेपीज एंड आई विल सीक समथिंग, हाँ यार वहां से शायद मुझे कोई तरीके पता चल जाए जिसे मैं मैनेज कर लूँ। And if I am not accepting the fact, I might not go seek for the help. So the way I think of the birth that is under the water will actually showcase how do I react or how do I maintain my level of communication in front of people. क्योंकि लोगों को मुझे एज अ थर्ड पर्सन से सिर्फ वो दिख रहा है कि ऊपर क्या है, उसके नीचे जो ओवर द टाइम बचपन से अब तक जो बिल्ड ऑन हुआ है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि यार सोसाइटी ने कैसे रिएक्ट किया। अब अगर माई पेरेंट्स आर वेरी एक्सेप्टेबल, नहीं यार इट्स ओके, इट हैपेंस, यू आर, मतलब लाइक एवरीबडी इज डिफरेंट एंड सो इज योर कम्युनिकेशन इज डिफरेंट एंड दैट इज कम्प्लीटली फाइन। तब जो मेरा नीचे का बर्फ बन रहा है वो एक अलग तरीके से है, जबकि वो पेरेंट्स जो कि अपने बच्चे को बचपन से टर्न करते थे, नहीं ठीक से बात करो, ठीक से बात करो, उस बच्चे का दिमाग में जो चीजें आ रही है दैट इज डिफरेंट। So how your society helps on with you to build on that birth actually determine how are you going to speak to people. So this is actually iceberg theory. या तो आई थिंक मिस्टर शिराज आप इस पे कुछ ऐड ऑन कर सकेंगे, बिकॉज आई रिमेम्बर कि आप ये बता चुके हैं कि आपके बचपन में इतना ज़्यादा स्टटरिंग पे कोई रिएक्शन नहीं था, और अगर था भी तो एक पॉजिटिव रिएक्शन था आपके पेरेंट्स की तरफ से, और स्कूल में भी आपको इतना कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। बट वंस यू एंटर्ड योर एडल्टहुड एंड यू वेंट ऑन फॉर जॉब्स एंड इंटरव्यूज, you did face problems regarding your stuttering. So I would like you to share कि किस तरह से जब बचपन में you didn't get reaction and what you used to think about your stuttering उस वक्त, और अब जब आपको reaction मिलने लगे उसके बाद आपकी सोचें किस तरह से तब्दील हुई अपने stuttering के बारे में। लाइक बचपन से लाइक मेरे पेरेंट्स ने लाइक कभी मुझे नहीं टोका ये इस तरह से तुम बात कर रहे हो, आराम से बोलो, तो स्लोली बात करो। दे ऑलवेज गिव मी दैट कॉन्फिडेंस कि आप बाहर जाओ। लाइक मैं बहुत ही लाइक 3-4 एज से मैं फोन कॉल्स कर रहा था, और मैं बाहर जाके जो होता है कि आउटडोर शॉपिंग, तो घर का सामान लाना, तो वो मेरी जो बाहर के लोगों से कम्युनिकेशन स्किल थी वो तो थी। अगर वो एक क्योंकि जब आप एक कंज्यूमर डील करते हैं कि लाइक आपको पेमेंट करनी है और आपको सामान लाना है, तो सामने वाले को इतना फर्क तो नहीं पड़ता कि उसको तो बस ये चाहिए यार मेरा सामान सेल हो जाए, मैं सिर्फ ऐसे ले लूं, इतनी सी ट्रांसैक्शन होती है, तो वो इतना खौफ नहीं होता। बट फिर अल्लाह का शुक्र है, आई एम लाइक प्रीटी लकी कि मेरे पेरेंट्स ने हमेशा बोला कि नहीं इसको रिएक्शन ना दो, और मुझे कभी घर वालों से कभी रिएक्शन नहीं मिला कि ये, उन्होंने हमेशा बोला कि जैसा ये बात कर रहा है वैसे इसको बात करने दो, he will get that confidence. But when I crossed 18 और जब मैं फर्स्ट जॉब इंटरव्यू देने गया, तो I really don't know, मतलब मैं इतना स्टटर क्या था, मुझे अब एहसास हुआ वो मेरे साथ क्या हो रहा था। उस वक्त मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं हुआ कि मेरे साथ हो क्या रहा है। I was like stuck, like मेरे जो ब्लॉक थे वो अराउंड लाइक 5 to 6 सेकेंड, और वो अभी तक मुझे याद है, लाइक वो मुझे हॉरर स्टोरी लगती है, बट अब तो मैं उसका मजाक बनाता हूँ। आई वाज लाइक यार ये हो क्या, मेरे साथ ऐसा तो हुआ ही नहीं है मेरे साथ।
फिर ऐसा होता है क्या है कि जब आपको एक तो आपको जॉब इंटरव्यूज बड़े मुश्किल होते हैं। अच्छा, कुछ ना कुछ करके आप जो जॉब इंटरव्यू पास आउट हो जाते हैं। अब नाउ यू हैव टू वर्क विद योर को वर्कर्स। अब वहां मैंने एक चीज की कि लाइक अब मेरा नाम है मोहम्मद शिराज इकबाल। अब जब मैं स्टक हुआ शिराज पे, तो आई वाज लाइक यार ये शिराज अगर मैं नाम बोलूंगा ना तो इट विल बी ग्रेट प्रॉब्लम फॉर मी, क्योंकि लाइक सामने को वाले को पता चल जाएगा कि शिराज में बोलूंगा तो वो समझे मैं हक लाता हूँ। और मोस्टली जो हमारे अच्छा एक और चीज है जो साबिर ने बात की कि हमारे लोग रिसेप्शन क्या है, जो एक स्टटर सोचता है। एक जो बात है कि हमारे यहाँ स्टटर का मजाक बनता है, सोसाइटी में बहुत दबा के मजाक बनता है। तो तभी ये सारा जो आइसबर्ग की जो ना खौफ और डर ये पैदा वैसे ही होता है, और वो अपने आप को बिल्कुल सही कह रहा होता है। और ये सच है, हमारी सोसाइटी का सच है कि हकलाट को मजाक बनाते हैं। तो तभी वो अपनी आइडेंटिटी बहुत ज्यादा छुपाता है इन आर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। मुझे बाहर का नहीं पता, बट इन आर पार्ट ऑफ वर्ल्ड बहुत ज्यादा है। इफ यू सी मूवीज, अगर कोई ऐसी मूवीज होती है तो लोग वहां पे मजाक बनाते हैं। फिर आपके दोस्त या फैमिली मेंबर्स वो देखो देखो उसका कैसा होता है। लेकिन आज भी जो स्टफिंग के कैरेक्टर्स होते हैं वो मुझे याद होते हैं, देखो उसने कैसे टाइमिंग का मजाक किया था और लोग कैसे मजाक बनाते हैं। तो अब जब जॉब वर्किंग में आया तो आई वाज लाइक यार ये शिराज बोलूंगा तो वो लोग मजाक बनाएंगे और वो लोग हंसेंगे, क्योंकि इफ यू वर्क विद योर को वर्कर्स वो भी इंडियन और पाकिस्तानी होते हैं, तो उनका भी सेम मेंटल लेवल ही होता है। तो आई वाज ओके, ठीक है। मगर मैंने ये क्या, मैंने अपना नाम सिराज नहीं बताया। आई वाज लाइक यार मोहम्मद मेरे लिए बोलना बहुत आसान है। आई वाज लाइक मेरा नाम मोहम्मद। तो लाइक इतनी 2-3 साल से सब लोग मुझे मोहम्मद के नाम से जानते थे। एक बार एक जो एडमिन का स्टाफ तो सुन लिया, तुम्हारा नाम मोहम्मद तो नहीं है, तुम्हारा नाम मोहम्मद सिराज है, फिर फैमिली नेम इकबाल है। तो मैंने बोला यार मैं मोहम्मद बोलने में इजी सकता हूँ। तो अगर ये हुआ कि अंदर से अंदर मुझे एहसास होता कि लाइक आई वाज डूइंग रॉन्ग समथिंग, क्योंकि मैं अपनी एक बहुत बड़ी आइडेंटिटी छुपा रहा हूँ। मेन है, मैं बचपन से सबको कहता हूँ मेरा नाम शिराज है, बट एकदम से जब मैं जॉब कॉर्पोरेट लाइफ में आया तो आई वाज लाइक नो शिराज तो नहीं है, मोहम्मद है। तो ये एक होता है कि जो खौफ अंदर यही होता था मेरे कि सामने वाले को पता चल जाएगा और वो मेरा मजाक बनाएगा और वो मेरी लाइक बैग पुलिंग करेगा, ये देखो हकलाता है और ये ऐसा है, ये देखो ये तो मतलब के काबिल नहीं है बात करने के लिए। एक ये बहुत अंदर से फील होता है, लोगों का रिएक्शन, लोगों के जो कमेंट पास आउट होता है। तो ये है थोड़ा बहुत जो मेरा एक्सपीरियंस जो मैं किया है मैंने ये अपने इसमें कॉर्पोरेट में। So, thank you, Mr. Shiraz, for sharing your experience with us. So, एक बात जो आपने करी, which is really interesting, कि आपने कहा कि सामने वाले को पता चल जाएगा कि मैं हकलाता हूँ, कि मैं अटकता हूँ इस पे। तो this is, I feel like this is contradictory, and maybe Ms. Sabreen, you can add on to it, that this is contradictory to what fluency is. By definition, fluency is the forward flow of speech which is not impeded by anything. And यही जब हम स्टटर कर रहे हैं तो तब हमारे दिमाग में ये चल रहा है कि हमें अवॉइडेंस आ रही है, कि हम रुक रहे हैं. वी आर इन अ वे स्टॉपिंग आवर फॉरवर्ड फ्लो ऑफ स्पीच बाय stopping yourself कि मैं ये बोलूंगा तो मैं ये अटकूंगा इधर. तो I think it's contradictory. Can you please add on to it, Ms. Sabreen? This is very interesting what he said. It is like कि एक चीज होती है fear क्या है? fear आपका इमोशन है. It is a emotion कि यार मैं बोलूंगा तो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे. That is my emotion. How I react to my emotion, that is avoidance. मैं क्या करती हूँ कि फिर मैं उसको अवॉइड करना स्टार्ट कर देती हूँ. So उस इमोशन को ओवरकम करने के लिए जो चीज मैं अपना रही हूँ, that is my reaction to it, and so is avoidance. लोगों से बात ना, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे ये मेरा ख्याल है,
और उससे बचने के लिए मैं क्या करूंगी, मैं जो है वो लोगों से बात करना छोड़ दूंगी। दैट इज माई रिएक्शन टू इट। तो एक बहुत अच्छी थ्योरी कहते हैं जिसे ABC, एंटीसीडेंट, बिहेवियर एंड कॉन्सिक्वेंस। एंटीसीडेंट क्या है, एक इवेंट है, इवेंट है कि यार मैंने बोला, वो बंदा मुझ पे हंसा, दैट इज द सिचुएशन जो कि हुई। D is the behavior and C is the consequence। बिलीफ को मैं साइड में कर देती हूँ। जो सिचुएशन हुई उसके कॉन्सिक्वेंस से मैंने क्या किया, लोगों से बात करना छोड़ दी। उसके बीच में जो मेरा बिलीफ सिस्टम मेरे दिमाग में बना, दैट एक्चुअली शोज कि हाउ आई आइडेंटिफाई माई सेल्फ। शिराज आइडेंटिफाई एट दैट सिचुएशन, ही थॉट कि यार आई एम अ पर्सन हु स्टटर, और ये आइडेंटिटी मुझे वहां पे नहीं बतानी। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट योर आइडेंटिटी हियर एक्चुअली शोज कि भाई आप क्या, आपका इमोशन क्या है उधर, और उसको देखते हुए आप किस तरीके से खुद को शो करेंगे। सो इन एडल्टहुड स्टटरिंग व्हाट वी यूजुअली डू इज, आप सिचुएशन चेंज नहीं कर सकते, हमारी सोसाइटी ऐसी है, आप पे हंसेगी, आप कुछ नहीं कर सकते इस बारे में जितना हम चेंज करना चाहें। अब उस कॉन्सिक्वेंस को चेंज करने के लिए आपको आपका बिलीफ सिस्टम चेंज करना है। दैट इज वाई एज एन एडल्ट स्टटरर, या फिर वो लोग जो कि स्टटर करते हैं, वी वर्क ऑन योर बिलीफ सिस्टम। व्हाट इफ द पर्सन लाफ्स एट यू, इज इट वेरी इंपॉर्टेंट, या फिर उनका लाफ आपके लिए इतना जरूरी है कि आप अपना बोलना छोड़ दें, और इज इट नॉट इम्पॉर्टेंट? और क्या हो जाएगा अगर वो हंस जाएंगे, क्या आपकी क्रेडिबिलिटी चेंज हो जाएगी? क्या आप शिराज नहीं रहेंगे? क्या आप साबरीन नहीं रहेंगे? नो। So we hit on that belief system so that your consequence could be changed. So this is how this all works. So the fear and anxiety. If you work on your fear, your anxiety, your avoidance will automatically be changed. Getting the point? So this takes on to जो शिराज साहब ने भी कहा कि सबका mental level ही ऐसा होता है कि they are going to react to it in a certain way, and it eventually becomes a pattern when you know कि हाँ इसी तरह का reaction आएगा. So then we come to a point कि जहाँ पे हम ये realize करना शुरू करें कि it doesn't matter अगर उनका reaction आ रहा है. Though I feel like it's a big step to take कि जब हम लोगों के पर्सपेक्टिव्स को इन अपने पॉइंट ऑफ व्यू में ना ऐड करें, and we keep going on forward. तो शिराज साहब, अगर आप मुझे ये बता सकें कि किस तरह से आपने जब आप 18 years की एज में एंटर हुए, आपने देखा कि लोगों के रिएक्शन आपको अफेक्ट कर रहे हैं, एंड फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम यू डिडंट tell people your name, your real name, and you kept using Muhammad as your name. तो उसके बाद किस एज के किस हिस्से में आके, या ऐसा क्या टर्निंग पॉइंट आया था जिसके बाद you realize, and what helped you in realizing कि लोगों के पर्सपेक्टिव इतने ज़्यादा मैटर नहीं करते, and I can go on with being myself? Okay, like एक क्वेश्चन मुझे साबिर से पूछना है, लाइक आप लोग से पूछना है कि जो आप लोग ने बोला कि आपका हमें आप लोग वर्कआउट करते हो बिलीफ सिस्टम पे वर्कआउट करते हो। अब देखिए, कुछ ऐसे बिलीफ हैं जो वाकई सच हो जाते हैं। लाइक मेरे साथ हुआ कि लाइक लोग ये सोचते हैं, और ये है अब ये हैं कि लाइक कि अगर मैं स्ट्रक्चर करूंगा उसको पता चल जाएगा, और वो ये समझेगा, और ये होता भी है। कुछ एक्सपीरियंस में शेयर करना चाहूंगा, उसके बाद मैं वो आंसर देना चाहूंगा कि लोग ये समझते हैं, और कुछ लोग ये बोलते हैं कि लाइक हाँ ये एक आपके साथ एक बहुत बड़ा मसला है, तो कभी हम आपको जॉब में नहीं रख सकते हैं। लाइक वी फील आपको कोई मेंटल इश्यूज हैं। अब मोस्ट प्रॉब्ली जो हमें मेंबर्स एक्सपीरियंस करते हैं, और जो मेरा भी एक एक्सपीरियंस है कि लोग ये समझते हैं कि इसके साथ कुछ मेंटल लेवल मसला है। अब इसका क्या हल हो सकता है? और इसकी वजह से आपके अप्रेजल इम्प्रूवमेंट रुकती हैं। आप भी बोलते नहीं यार मेरे साथ ऐसा तो प्रॉब्लम तो नहीं है, बट आई एम बिट स्मार्ट इनफ कि मैं आगे इसको एक जॉब टास्क को मैं कर सकता हूँ।
अगर सामने वाले का रिएक्शन होता है नो यार ये नहीं काम कर सकते, इसको हम नहीं देते, इसको अपॉर्चुनिटी नहीं देते, इसके अप्रेजल रोक देते, ये ऐसा होता है। व्हाट यू इसका आप बताएं, लाइक इसमें हम बिलीफ सिस्टम चेंज करते हैं। अगर एक एक्सपीरियंस हो चुका है कि नहीं यार ये तो होता ही ऐसा है कि लाइक इस पे आपका क्या आंसर होगा? ओके, सो यहाँ पे मैं ये बोलूंगी कि लुक, our society is like this and I think we cannot do anything of it, but the point is कि आप जिस situation में है ना, try to, I mean, mold that situation into your favor. I know it is very difficult. For instance, if even my fluency is not very good, I do stutter at few points. So what you usually do is that if you think that you are not very fluent, maybe you can offer a job that doesn't require a lot of communication. Maybe you can go for that sort of things जो के नंबर्स पे ज्यादा काम करे, लिखने पे ज्यादा काम करे, तो ज्यादा बोलने की जरूरत महसूस ना हो। अगर ज्यादा बोलने की जरूरत महसूस ना होगी तो प्रॉब्लली मेरा बोलना ना बोलना इतना मैटर नहीं करता। सो आई कुड गो फॉर समथिंग जो कि उसको कॉम्पनसेट कर दे, बट मी एज अ पर्सन, मेरी स्किल्स विल रिमेन इंटैक्ट। सो दिस, आई थिंक एक्सप्लेनिंग दिस टू द HR और प्रॉबली जो एम्प्लॉयमेंट एजेंसी, उन्हें बताना थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि माई फ्लुएंसी विल नॉट बी अ प्रॉब्लम टू व्हाट आई विल डू बिकॉज माई JD इज नॉट दिस। सो आई थिंक ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बट इफ वी टेक अ स्टैंड टू डू दैट, I think this might help a little. This is just my suggestion and opinion to what you said. Also, Ms. Sabreen would agree with me, or maybe add on to this, that जब speech therapy के sessions होते हैं, so there is rational emotive therapy that speech therapists do. Yes. तो उसमें काफ़ी ज़्यादा in detail प्रोसेस होता है जिसमें हम बिहेवियर को और उसके कॉन्सिक्वेंसेस को हम उसको टारगेट करते हैं, देन वी लुक इनटू इट एंड वर्क ऑन इट कि हम किस तरह से इसको चेंज कर सकते हैं जो हमारे बिलीव्स बन चुके हैं। So, circling back to you, Mr. Shiraz, if you can tell us, what was the turning point in your life that made you realize कि लोगों के perspective इतने ज़्यादा affect नहीं करेंगे, and to my growth and my future does not depend on what people think and how they react, but rather it's who I am. ओके, ये मुझे एहसास हुआ लाइक ये 5 साल पहले की बात है। When I joined, when I was in Abu Dhabi, I joined self-help group, और लाइक उससे पहले लाइक आई विल टेल लाइक मैं आराम से 40 से 50 जॉब इंटरव्यू दे चुका था, एंड आई वाज लाइक कि मैं हमेशा स्टार्टिंग को पाता था और लोगों से मैं प्रॉपर कम्युनिकेट नहीं करता था कि मेरे साथ इशू है और ये मुझे डर है, खौफ है। बट व्हेन आई जॉइन सेल्फ हेल्प ग्रुप, इसलिए मैंने आज तक कभी स्पीच थेरेपी नहीं ली है। अब मुझे काफी अच्छे अपॉर्चुनिटी मिली है, थैंक्स टू अल्लाह। बट उससे पहले मैंने कभी स्पीच थेरेपिस्ट नहीं लिया। हाँ, सोचता था, मतलब हमेशा सोच ही रहती थी। 3-5 साल 10 साल गुजर गए, स्पीच थेरेपिस्ट जाना है, स्पीच थेरेपिस्ट जाना है, मगर वो कभी नहीं किया मैं। बट व्हेन आई जॉइन सेल्फ हेल्प ग्रुप में एक ही सेम लोगों से मिला जो सेम प्रॉब्लम से गुजर रहे थे, एंड दे जस्ट सजेस्ट मी 3 थिंग्स। फर्स्ट, इट इज ओके टू स्टटर। आप लोगों के साथ कम्युनिकेट करो कि व्हाट यू आर गोइंग थ्रू। एंड नंबर 3, इफ यू गो टू जॉब इंटरव्यूज, किसी से आप मिलो जिससे आपको रिलेशनशिप करनी है, तो आप उसको पहले से इन्फॉर्म कर दो। तो आई सेड ओके, मैंने बोला ठीक है, मैं ये ट्राई करता हूँ। और जब मैंने ये 3 चीजों में अमल किया तो लाइक मेरी लाइफ बिल्कुल अप एंड डाउन हो गई, एकदम चेंज हो गई। चेंज इस तरह से हुई कि लाइक व्हेन आई स्टार्ट टू कम्युनिकेटिंग विद माय ऑफिस कलीग, जिनसे मैंने आज तक कभी जिंदगी में नहीं किया, तो दे गिविंग मी रिएक्शन कि हाँ, हमें प्रॉब्लम तुम्हें ये नजर आती थी, पर हमें हमेशा जो है ना, हम तुमसे बात नहीं करते थे कि शायद तुम्हें बुरा लग जाए। अब मुझे बाद में एहसास हो कि मैंने उनसे साथ कम्युनिकेट नहीं किया, तो उन लोग ने मुझे कहा कि नहीं यार, हम ऐसा फील हो कि हम अगर तुम्हारे बारे में बात करें तो हमें शायद ये बुरा लगे। आई वॉज प्रीटी शॉक कि इतने अर्से मैंने कम्युनिकेट नहीं किया।
द नेक्स्ट थिंग व्हेन आई वेंट फॉर अदर जॉब इंटरव्यू, तो मुझे उस वक्त एहसास हुआ कि लाइक ओके, जब मैंने ये बता दिया कि लाइक ओके आई स्टटर, तो मेरे अंदर एक बहुत बड़ा जो डर खौफ था रिलीव हो गया, एंड आई वाज रियली फ्लुएंट इन माय इंटरव्यूज। और उसने ये एंड में बोला कि ओके हम आपको स्टटिंग में जज नहीं करेंगे, आपके स्किल लेवल पे जज करेंगे। तो उसके बाद मुझे एहसास हुआ कि मुझे अपनी स्पीच लेवल पे भी इतना काम करना है, मगर आई हैव टू वर्क ऑन माय स्किल। कि मुझे बाद में एहसास हुआ कि ओके यार, मुझे जो रिजेक्शन हो रही थी मुझे स्किल लेवल पे हो रही होगी, नॉट माय स्टटरिंग एज वेल। तो मैंने अपना ये बिलीफ सिस्टम बहुत काफी चेंज किया। तो अब ये होता है कि हाँ जो जॉब, फिर मैं ये देखता हूँ हाँ ये जो जॉब की रिक्वायरमेंट है, क्या मैं इसमें क्राइटेरिया है, ओके नाउ आई लव टू स्पीक मोर। तो अब जो स्पीकिंग वाली होती है, मैनेजिंग लेवल होती है, वहां मैं अप्लाई करता हूँ। राइट नाउ आई एम लाइक वर्किंग इन मैनेजिंग, और मैं थ्रू जो है वो लोगों से कम्युनिकेट करता हूँ ठीक ठाक से। और लाइक रोजाना में लाइक आई वाज स्पीकिंग लाइक अराउंड 30 पीपल, कभी वॉइस नोट जा रहा है, कभी ये जा रहा है। तो अभी ये डर नहीं होता कि यार मैं हकला जाऊंगा तो दूसरा क्या सोचेगा। आई वाज लाइक यार जैसा मैं हूँ वो हूँ मैं। तो एकदम मेरी व्हाट आई फील लाइक कि जब मैंने कम्युनिकेट लोगों से स्टार्ट किया, तो आई वाज लाइक यार जो लोग सोचते हैं वो मैं चेंज तो नहीं कर सकता, बट हाँ मैं ये कर सकता हूँ, मैं लोगों से बात कर सकता हूँ, कम्युनिकेट कर सकता हूँ। अब नाउ इट इज अप टू देम। जो कम्युनिकेशन लेवल जो होता है वो बिल्कुल नहीं, मैंने नहीं किया। तो लोगों से जब कम्युनिकेशन की तो ओके, इफ एक ये भी होता है कि अगर उसकी गलत सोच है तो वो भी आप चाहो तो उसको सही आप कर सकते हो, आप इसको इन्फॉर्म कर सकते हैं स्टैमरिंग ऐसी नहीं है। तो मैंने ऐसा ये किया कि मैं खुद ही इसकी अवेयरनेस देने लगा इन द ऑफिस इन एवरीथिंग। लाइक अभी जहाँ मैं जहाँ काम करता हूँ इट्स लाइक अराउंड 50 पीपल मेरे डिपार्टमेंट में है, एंड एवरीबडी नोज आई स्टटर, और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। एंड फिर और भी लोग हैं, 500-600 लोग हैं, उनको भी पता है, दे हैव सीन माय वीडियो, सो आई डोंट केयर क्या ठीक है जो है। अब मोस्टली अब जो मैं वर्किंग करता हूँ अपनी स्किल्स लेवल पे, ज्यादा किताबें पढ़ लूँ, एजुकेट हो जाऊँ, स्किल सीख लूँ, ये क्या आया है, लाइक मोस्टली ये अब थोड़ा एक ट्रांसफर शिफ्ट हो चुका है। काफी संभव बोल दिया मैंने, मगर ये काफी नहीं, थैंक यू फॉर शेयरिंग दिस। तो अब आप मुझे ये बात बताएं कि जब आपने सोचना डिफरेंट किया अपना, कि लोगों के पर्सपेक्टिव्स को मैं नहीं चेंज कर सकता, इट्स बेटर कि मैं अपने आप को चेंज करूं। सो डू यू थिंक व्हेन यू स्टॉप अवॉइडिंग योर स्टटरिंग और आपने अपने फियर को कम किया और उससे से जो रिएक्शन आपका अवॉइडेंस का आ रहा था उसको कम किया, एंड यू वेंट आउट to communicate more with people, do you think that changed the opportunities that you got in comparison to what you were getting before? Yeah, of course, like शुरू में like when I was like पहले कम्युनिकेशन ऐसी होती है कि जब आप एक सिचुएशन में आते हैं आपको कम्युनिकेट करना वहां करते हो, बट व्हेन यू स्टार्ट कम्युनिकेटिंग मोर टू पीपल, तो ऑफ कोर्स मेरी अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा हैं जो मैंने कभी जिंदगी में नहीं सोची थी। लाइक मैंने कभी जिंदगी में सोचा था लाइक हम ये स्टैमर सर्कल बनाएंगे, अभी पॉडकास्ट करेंगे, लाइक इट्स ऑल अराउंड कम्युनिकेशन, लोगों से कम्युनिकेट करके नेटवर्क करके हम लोग इसलिए अब तक यहाँ तक पहुंचे हैं। इंशाल्लाह और भी आगे जाना है हमें। तो लाइक यही है कि लाइक ये बिल्कुल एक ट्रांसशिप उसी से हुआ कि व्हेन आई स्टार्टिंग communicate with people more and I starting raising awareness about myself कि यार ये मैं स्टार्ट करता हूँ और ऐसे। और मैं जब मैंने स्टार्ट किया लाइक व्हेन आई वाज, अभी भी लाइक मैं जिससे भी मिलता हूँ उससे मैं ये बात करता हूँ, एवरीवन जो भी मेरे पास नॉलेज है आई जस्ट शेयर विद इट। अच्छा ऐसा है, स्टार्टिंग में ऐसी होती है, लाइक एवरीवन जो जिसको नहीं पता तो भी मुझे पूछो। लाइक कल मेरा ऑफिस का बंदा था, उसने पूछा यार मैंने आपको स्टैमर सर्कल दे था, ये होता क्या है? तो फिर उसको मैंने पूरा पता है। एवरीवन आस्क मी, और मैं और जो भी मुझसे मिलता है मैं बोलता हाँ हम ये चलाते हैं, ऐसे अवेयरनेस देते हैं। अब मेरे ऑफिस में भी लाइक
they don't judge me about my stammering, they only judge my skills कि हाँ सिराज ने काम पूरा नहीं किया। वो ये नहीं देखते यार ये हकलाता है इसलिए इसने काम पूरा नहीं किया। they like हाँ ओके वो तो एक नॉर्मल इंसान भी लाइक पंक्चुअल नहीं होता, मतलब काम में लेट हो गया, मिस्टेक्स हो गई, वो एवरीवन डज इट, बट लाइक ये नहीं होता कि जो पहले ऑफिस वालों से ये हुआ कि लाइक उनके साथ मैंने कम्युनिकेट नहीं किया एंड दे डजंट नो अबाउट स्पैमिंग। बाद में एहसास हुआ कि वाकई में लोगों में इधर हमारे स्टर्टिंग अवेयरनेस बहुत कम है, कि वैसे इतने मसले मसाइल बहुत हैं तो वो समझते हैं कि स्टर्टिंग कुछ है तो एक बहुत बुरी चीज है, ये मेंटल प्रॉब्लम है, बंदा आगे ग्रो नहीं कर सकता। बट व्हेन यू स्टार्ट कम्युनिकेट तो आप भी चाहो तो उस बंदे को, ओके आप दिमाग तो नहीं चेंज कर सकते मगर आप एटलीस्ट आप इसको इन्फॉर्म। Yeah. So इससे मैं दो चीजें ले रही हूँ and Miss Sabreen maybe you can add on to this कि जब हम एडल्टहुड में एंटर होते हैं, और आई वुड गो बैक टू टीनेज वाले ईयर्स में, कि जब हमारी आइडेंटिफिकेशन ऑफ सेल्फ हो रही होती है, फॉर्मेशन ऑफ सेल्फ हो रही होती है, वी स्टार्ट आइडेंटिफाइंग कि हम क्या हैं, एंड देन वी चूज द फील्ड्स दैट वी वांट टू गो टूवर्ड्स, वी चूज द स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स। तो उस वक्त हमारा आइसबर्ग जो है वो बनना शुरू हो जाता है, एंड आइसबर्ग इज व्हाट थॉट्स एंड व्हाट पीपल्स पर्सपेक्टिव वी आर टेकिंग। सो जो टिप रिमेन्स द स्टटरिंग, एंड उसके नीचे जो समंदर के नीचे जो हमारा पूरा आइसबर्ग है, दैट इज के एक के ऊपर एक दूसरी चीज बिल्डअप होती जा रही है। वन इंसिडेंट हैपेंड, दिस इज द फियर कि स्कूल में टीचर ने स्पेसिफिक तरीके से रिएक्ट किया, इंटरव्यू में स्पेसिफिक तरीके से रिएक्ट किया, एंड दैट builds up and we have a big iceberg that nobody other than us knows about, क्योंकि हम ही जानते हैं कि हमारी स्टटरिंग के कौन से इवेंट्स हुआ और उसने हमारे थॉट्स को कौन कौन से रिएक्शंस दिए हैं। नाउ when entering in adulthood, jobs वगैरह के प्रॉब्लम हो रहे हैं, and then we come to a point where we want to tell the person with stuttering कि अब ये ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं करना चाहिए आपको, कि लोगों के रिएक्शंस इतने इम्पैक्ट नहीं करने चाहिए। सो बेसिकली व्हाट वी आर डूइंग इज वी आर changing the way our iceberg looks. So rather than keeping the iceberg under the water, समंदर के नीचे रखने के बजाय we are bringing it up outside on the seashore maybe. तो like जैसे शिराज साहब ने कहा कि मैं नहीं कर रहा था communicate, but then I started communicating. I started awareing myself first कि हाँ मैं stutter करता हूँ, and मैं स्टटरिंग करते हुए स्पेसिफिक रिएक्शंस देता हूँ, सो और लोगों को मेरा स्टटर सुनाई दे रहा है। तो मिस साबरीन, इफ यू कैन ऐड ऑन टू दिस कि हाउ can we sabotage, or how can we change the way, or bring it out on the surface, the iceberg? Okay, so it is like that, आपके जो समंदर के नीचे का आइसबर्ग है, आप उसके फीलिंग्स को चेंज करते हो, like that unacceptance changed into acceptance, that hopelessness changed into hope, that denial changed into a kind of happiness, या फिर यार मैं लोगों को इंस्पायर कर रहा हूँ, ठीक है। सो दैट फीलिंग, दैट इमोशन, जैसे बोला कि हर इवेंट के साथ एक रिएक्शन या एक इमोशन अटैच्ड है, तो वो बाय द टाइम शिफ्ट होता रहता है। So when you be into an adulthood, your self identity is very important. Self identity जो है ना वो बहुत important इस सेंस में है कि सेल्फ आइडेंटिटी वो होती है लोग मेरे बारे में मुझे क्या कहते हैं। So with every situation my self identity is different. As Sabreen, my self identity here as a speaker, Shiraz self identity here as the founder of Stammer Circle. However, when I be a Jaudi, my identity there is as a lecturer. So you as a person, when you introduce yourself to people, the environment actually tells you कि आपको लोगों को क्या बताना है। Like initially Shiraz said मुझे शुरू में नहीं बताना था, लेकिन अब मैं लोगों को खुशी खुशी बताता हूँ, and it's fine कि मैं ऐसा हूँ। So how you tell who you are is very important here, and that we call this self esteem कि यार क्या मैं एज अ स्टटरर लोगों को बताना यहाँ पे मैटर करेगा? अगर मैटर करेगा so I could tell, और नहीं करेगा तो नहीं। अगर यहाँ पे एज अ लेक्चरर लोगों को बताना मैटर करेगा तो मैं लोगों को बताऊंगी कि यार मैं सीनियर लेक्चरर हूँ। अगर मैटर नहीं करेगा so
probably that identity here does not matter to me at all, or does not matter to the people at all. So this social identity is very important to the environment you are in and the people you are in. So this is how your reaction, your emotions and the people around you build upon your identity and build upon your self esteem you are at. अगर बहुत लो है तो शायद मैं नहीं करूंगी, बट आहिस्ता आहिस्ता यू हैव टू बिल्ड ऑन टू दैट. तो नहीं यार, इट इज फाइन. This is how, this is me Sabreen, this is me Shiraz, and I am going to be it. So I have to accept to the fact कि यार मैं यही हूँ. So I think with the time, with experience and this self esteem, bringing on to that is very important. ओके सो ये जो मोहम्मद अब्दुल्ला शेख ने जो पॉइंट्स लिखा है इधर, विच इज़ रियली इंटरेस्टिंग. एंड शिराज साहब, अगर आप इस पे कुछ बोल सकें कि ये जो आइडेंटिटी वाली बात जो मैं साबिन ने करी है कि हम खुद ही लोगों के रिएक्शन से अपनी आइडेंटिटी बनाते हैं कि मेरे स्टटर पे किसी ने रिएक्ट किया, सो दैट मेक्स मी अ स्टटर. So like we also see some covert stutterers who aren't stuttering. Their disfluency falls into normal disfluency, but still they would think that they are very disfluent because people का reaction इस तरह का आया है कि वो अपने आप को disfluent ही समझ रहे हैं. So जो इन्होंने बात लिखी है कि जब मैं proper communication भी कर रहा हूँ तो लोग कहीं ना कहते हैं कि आज सही कैसे बोल रहे हो. एंड व्हेन पीपल से दैट, देयर इज अनदर कमेंट दैट सेज कि जब लोग मुझे ये कहते हैं कि आज सही कैसे बोल रहे हो, दैट makes me stutter again, that makes me start stuttering again. So maybe Mr. Shiraz, if अगर आप इस पे add on कर दें कि how does even a reaction like this on fluency brings out the disfluent speech. ओके, ये जो इन्होंने बोला ना आज कैसे सही बोले, ये मेरे साथ बहुत होता है, ऑफिस में बहुत होता है. और लाइक मेरे साथ ऑफिस में एक बार हुआ था कि लाइक मोस्टली वी कम्युनिकेट ऑन द व्हाट्सएप वॉइस नोट. तो कुछ वॉइस नोट में कुछ वर्डिंग में कुछ स्टक होते हैं तो दूसरा बंदा फील करता है, वो मुझे फीलिंग नहीं होती. एक बार मेरा वॉइस नोट बिल्कुल फ्लुएंसी है, अच्छा मुझे एहसास भी नहीं हो मैंने वॉइस नोट फ्लुएंसी भेज दिया. उस बंदे का मुझे रिएक्शन नहीं आया, यार आज बड़ी फ्लुएंट बात की है. तो मैंने बोला आज मैं बड़े अच्छे मूड में था. तो आई रियली डोंट नो लाइक मतलब, और ये मेरे साथ होता है लाइक समटाइम मैं स्टक कर जाता हूँ. जो मेरे साथ ये हुआ, जो मेरे साथ हुआ है कि जब मैं स्टक करता हूँ तो उसका जो एक नेगेटिव इमोशन जो मुझे अपने आप को देना है वो मैं अब नहीं देता. वो क्या है कि हकलाने का जो खौफ है ना, वो खौफ मैंने एकदम खत्म कर दिया है. तो अब मुझे नहीं लगता दूसरा बंदा क्या, वो लाइक मोस्टली क्या होता है, एक बार मैं ऑफिस में ही ट्रेनिंग दे रहा था. तो लाइक आई सेड, मैंने ट्रेनिंग में स्टार्ट में बोल दिया था सबको, देखो मैं हकलाता हूँ तो कुछ वर्ड्स अगर समझ में आपको नहीं आए तो यू कैन आस्क मी. तो आई वाज बिट रिलैक्स. मैंने सबके ऊपर बॉल जो है दूसरों के कोर्ट में डाल दी, तो किसी ने मुझे पूछा ही नहीं. तो आई थॉट इट्स फ्लुएंसी गई होगी. तो बाद में जो ऑफिस के लोग बोले यार बड़ी फ्लुएंट बात बोली. मैंने अल्लाह का शुक्र है यार, अच्छी आप दुआ करो मैं ऐसी बात करूं. तो लाइक ये होता है. और समटाइम ऐसी गाड़ी ऐसी अटकती है कि बंदे को एहसास नहीं ये हुआ क्या. तो लाइक सामने वाला आज तुम अटक गए, इट्स ओके, यही तो होना है. लाइक अब ये अटक क्यों रहे हैं, कभी कभी फ्लुएंसी जाती है. ये मैं बोलता हूँ यार ये है ऐसा, ये ऐसी मैं ऐसी बात करता हूँ. शिराज, ये मेरा एक्सपीरियंस आंसर. दिस इज वेरी. मैं सिर्फ यहाँ पे एक बात ऐड करूंगी. अ वेरी मेजर सिम्टम एंड अ मेजर हॉलमार्क इज ऑफ स्टटरिंग. There will be times when you are completely fluent, and there will be times that you will feel blocks. So this is very common. The other thing is what Shiraz has actually मतलब उसने उसको अपनी लाइफ में बहुत चेंज किया. अवॉइडेंस एंड फियर, ये एक नेगेटिव रिएक्शन टू योर इमोशन है जो कि किसी की भी लाइफ में नेगेटिवली रिएक्ट या नेगेटिवली इम्पैक्ट कर सकता है. इसीलिए ऑल योर जब आप चीजों को रिएक्ट करते हैं तो फियर अवॉइडेंस जो है वो एक अच्छी चीज नहीं है अगर आप उसको अपनी लाइफ में रखें. तो अवॉइडेंस एंड एंजाइटी, so these both are very negative terms and that can impact yourself in a very negative way.
सो इट इज बेटर कि हम इस कॉन्सिक्वेंस को एक्चुअली चेंज करें. गुड पॉइंट मिस साबरीन. अच्छा मिस्टर शियाज, अगर आप ये मोहम्मद उसामा अजीम के कमेंट पे भी अगर आप कुछ कमेंट करें, एंड आई एम आस्किंग दिस टू यू मिस्टर शियाज बिकॉज यू हैव एक्सपीरियंस्ड दिस. तो वो कह रहे हैं कि सबसे वर्स्ट पार्ट इज व्हेन पीपल लाफ व्हेन यू आर स्पीकिंग. नाउ दिस वुड हैपन, लाइक अगर कोई प्रेजेंटेशन देने जा रही हूँ मैं, या मैं किसी भी दोस्तों से भी बात कर रही हूँ, और अगर मैं उस वक्त हकलाना शुरू कर दूं तो लोग मुझ पे हंसेंगे. आई नो दे आर गोइंग टू लाफ एट मी, बट उस वक्त एट दैट पॉइंट इन टाइम मैं ऐसा क्या अपने अंदर सोच रखूं that would help me ignore that or not take into consideration? First of all, I like to tell Assalamu alaikum Osama Azim. He's a starting member of Stammer Circle. अभी आउट ऑफ पाकिस्तान है. मैंने इसको भी इंस्टाग्राम चेक करा था. इज प्रीटी कॉन्फिडेंट नाउडेज. मुझे बहुत अच्छा लगा तो मैंने मैसेज किया था. तो ये तो होता है इसका. आप जो अच्छा मेरे साथ अभी भी होता है ये. इस लेवल पे आने के बाद भी लोग हंसते हैं. और मैं एक चीज ऐड ऑन करना चाहूँ. मैं मुझे ऐड करना था इसमें कि जब आप अपनी शादी के लिए जाते हैं, रिश्ते की बात करना चाहते हैं, तो वहां तो बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं. क्योंकि अच्छा मेरा जो अब एक्सपीरियंस ये है कि जॉब इंटरव्यू से ज्यादा मुश्किल इज रिश्ता इंटरव्यू. वो बहुत टफ सिचुएशन है. मुझे पहले साफ होता था कि नहीं, जॉब इंटरव्यू हम लोग के लिए मुश्किल सिचुएशन है, बट रिश्ता इंटरव्यू इज टफ. वो तो सबकी नजरें आपके ऊपर होती हैं. ये खा क्या रहा है, बोल क्या रहा है, हंस क्या रहा है, अगर उसने बाल भी ऐसे किए उसने ऐसा क्यों किया. वो एक नजरें होती हैं आप पर. तो मैं उसका ये होगा वो लोग हंसेंगे. अब इसका आप कुछ कर नहीं सकते. आप बस यही इनको आप एजुकेट ही कर सकते हैं अपने आप से. मेरी वही बात आ गई कि कोई हंसता है तो आप उसको एजुकेट कर. आपका काम आ गया. यू हैव टू इन्फॉर्म देम, यार मैं ऐसी बात करता हूँ, क्योंकि लोग हंसेंगे. आप जैसे मैं अगर स्टक करता हूँ, मेरी आंखें होती हैं तो लोग हंसते हैं आगे. उसकी हंसी तंजी हंसी आपको पता चल जाती है, यार ये हंस रहा है मेरे ऊपर. ऐसे ओके ठीक है, इसका मैं कुछ कर नहीं सकता. कोई हंस रहा है इसका हमसे कर. हाँ, आप सिर्फ ये काम कर सकते हो, आप अपने आप को उस वो रिएक्शन का असर बना दो. आपको अगर अपना असर, जो एक वर्ड है वो है डिसेंसिटाइजेशन. मुझे इसका उर्दू मतलब नहीं पता. yes. हाँ, कि अपने एहसास के इसके तौर पे आप खत्म कर दें. तो आप अगर जितना अच्छा डिसेंसिटाइज होंगे उतना आपको हंसने का रिएक्शन है. बोले हाँ मैं तो ऐसी बात करता हूँ, हंसना सब मैं. आप उसको एजुकेट कर दो. वो व्हाट आई डू राइट नाउ कि मैं उसको एजुकेट करता हूँ. अभी ऐसा हुआ मेरे साथ कि हम लोग 3 ऑफिस पुलिस से एक नया बंदा मिला. उसने मेरा पूछा नाम, तो एंड ही सेड आई स्टक ऑन माय नेम शिराज. दूसरे बंदे ने मेरी हेल्प की, उसने बोल दिया शिराज. तो उसको मैंने रोका. मैंने मुझे बोलने दो ना यार. तो एकदम वो रुक गया. मैं बोल रहा, मुझे पता है मैं टाइम से बोलता हूँ, मगर बोलने दो ना मुझे. तो ये एक आई नो ये बहुत टफ है जो मैं बात कर रहा हूँ. इट्स रियली टफ, बट आपको इस लेवल तक पहुंचना होगा. दैट्स माय मैसेज. एंड जो रिश्ते वाली बात मैं इसमें ऐड ऑन कर देता हूँ कि ये बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं. और जब आप रिश्ता इंटरव्यूज में, मैं तो काफी शुरू में काफी हकलाता था. तो वो एक नेगेटिव रिएक्शन आता है वहां से. ये तो हकला रहा है, इसमें तो बहुत बड़ा मसला है. वो फिर वहां से रिस्पॉन्स नहीं आता. तो जी, जैसे हमें जॉब इंटरव्यूज में प्रॉब्लम नहीं है, रिस्पॉन्स नहीं आता, ऐसे रिश्ते इंटरव्यूज में रिस्पॉन्स नहीं आता. मोहम्मद अब्दुल्ला शेख की सेइंग कि फाइनली उसका रिश्ता हो गया. कांग्रेचुलेशन 3-4 इंटरव्यूज के बाद. Okay, so Ms. Sabreen, can you add on to the term that Mr. Shiraz used, desensitization? इसको अगर आप more therapeutic उसमें समझाएं कि what how it's done in therapy. Okay, so desensitization, it is actually what, like just मैंने शुरू में बात की थी, that is ABC, antecedent, belief and the consequence. So we hit on your belief system to desensitize you. It is okay if people laugh. This does not affect you at all. So desensitization actually होता ये है कि आपको किसी चीज से अब फर्क नहीं पड़ता.
A common example in the healthcare professional could be कि there are nurses, ठीक है, जिन्होंने इतनी डेड बॉडीज जो है वो देखी है अपनी लाइफ में या फिर अपने करियर में कि नाउ इट इज आई मीन दे से वो ओके. सो इट इज लाइक कि किसी भी चीज से आप डिसेंसिटाइज, जस्ट लाइक शिराज इज नाउ, इट इज ओके इफ पीपल लाव, आई डोंट केयर, मतलब मेरी जात पे कोई फर्क नहीं पड़ा. इट इज ओके इफ पीपल कॉमेंट ऑन मी कि यार तुम ऐसे नहीं, तुम ऐसे बात करो, तुम सांस लेके बात करो, तुम रिलैक्स होके बात करो. अब शायद उन लोगों के उस कमेंट में मुझे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है. सो अगर किसी चीज से आपको फर्क पड़ना छूट जाए, दैट इज एक्चुअली डिसेंसिटाइजेशन. एंड ऐसा नहीं है, अब ऐसे भी नहीं हो सकता कि मैं आपको सिखाऊं और आप अभी ऐसे हो जाएं. नो, दिस कम्स विद प्रैक्टिस, दिस कम्स विद कम्युनिकेशन टू अ पर्सन हु इज ट्रेन्ड इन हिटिंग ऑन योर बिलीफ. दैट इज व्हाई वी डू RET. हम रैशनल इमोटिव थेरेपी करते हैं इसीलिए कि वी हिट ऑन इट, वी गिव यू क्वांटम क्वेश्चंस to think on you, to rethink on your thoughts कि ओ यार हाँ, अगर मैं ऐसा नहीं और ऐसा सोचूं तो भी तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा इस बात से. So that is why it is better to go talk to a person who is expert in doing that, that can help you to build up that self-esteem that you have lost during this process. That's true, Miss Sabreen. Mr. Shiraz, आप जो अपना स्टैमर सर्कल का ग्रुप करते हैं, सो आई नो कि आप बहुत सारी डिसेंसिटाइजेशन वाली एक्टिविटीज करवाते हैं, जिसमें आई थिंक द फर्स्ट वन इज वेयर यू टेल देम कि जाके एडवर्टाइज करो अपनी स्टटरिंग. सो आई वुड लाइक टू नो कि उस पे लोगों का क्या रिएक्शन होता है, जो आपके मेंबर्स होते हैं स्टैमर सर्कल के, हाउ डू दे रिएक्ट टू दैट, एंड देन वंस दे डू दीज एक्टिविटीज जो आप होमवर्क देते हैं, उसके बाद उनका क्या रिएक्शन होता है? ओके, लाइक फर्स्ट जब हमने जब स्टार्ट किया था कि एडवर्टाइज देने के लिए, तो काफी मेंबर्स को तो लाइक दे सेड नो, हम तो नहीं करेंगे. तो आई सेड ओके, आप लोग तो हम फोर्स तो नहीं कर सकते. मैं कुछ लोगों ने बोला ओके हम ट्राई करेंगे. सो वो लोग गए बाहर, एडवर्टाइज किया. तो उन्होंने बाद में जो रिएक्शन बोला, वो यही बात बोली जो हम अभी बात कर रहे हैं कि उन्होंने किया कि वो फर्क नहीं पड़ता. एक हमारा मेंबर था, वो उसको उसने जब अवेयरनेस डे इवेंट पे स्पीच दी, लाइक अराउंड लाइक 50-60 पीपल, तो उसने बाद में हमें एक बहुत बड़ा फीडबैक दिया कि मुझे हमेशा जिंदगी में लगता था कि लोग को फर्क पड़ता है, मेरी फैमिली से लोग को फर्क पड़ता है. और जब उसने 10 मिनट स्पीच दी, तो उसने बोला वाकई मुझे उस वक्त ये एहसास हुआ कि वाकई लोग को फर्क तो नहीं पड़ता. मैं ही इतनी जिंदगी में यही समझता था कि फर्क पड़ता है. तो आई थिंक मेन है कि आप उस सिचुएशन में जाके ही एहसास होता है. तो मेन है कि लाइक आप जब तक कम्युनिकेट करेंगे, एडवर्टाइज करेंगे, तो ही आपको एहसास होगा वाकई यार ये तो फर्क तो नहीं पड़ता लोग, ये तो मेरे पर ही, ये तो मैं ही ऐसा सोचता था. और यही फीलिंग हमें मेंबर्स, और जो लोग नहीं करते, इट इज अप टू देम. हम उनको फोर्स आउट तो किसी को नहीं कर सकते. Yeah. Okay, so there are a lot of comments that are asking कि हम अपनी स्टैमरिंग को किस तरह कम कर सकते हैं और हम अपने ब्लॉक्स को किस तरह कम कर सकते हैं. So शिराज साहब, अगर आप इस पे since we are not discussing this today कि हम किस तरह से कम कर सकते हैं, I would like you to give the reason behind why you focus more on desensitization therapy in your stammer circle group, और आप क्यों ज़्यादा avoidance reduction पे काम करते हैं बनिस्बत इसके कि fluency को achieve कर लें. तो अगर आप थोड़ा सा इसके पीछे reason बता सकें कि why you do that. Like okay, like what I believe, मैं शेयर करता हूँ, that's my opinion. जितना मैंने भी स्टडी की इसके ऊपर कि desensitization will work on 90%. जब आपको अपने बारे में पता चल जाएगा, लाइक अब जब मुझे पता है कि मैं शिराज में अटकता हूँ, एफ वर्ड में अटकता हूँ, एस वर्ड में अटकता हूँ, 9 वर्ड में मैं अटकता हूँ, तो जब मुझे ये अपने बारे में पता चल जाएगा, और फिर जो फ्लुएंसी वो 10% मेरे हिसाब से, कि आपको जब पता चल जाएगा ना मैं इस चीज में हकलाता हूँ, तो आप उस वक्त, इसलिए एक बात मैं सब लाइक इन्फॉर्म करता हूँ कि वी नो ऑलरेडी कि हम कौन से अल्फाज में हकलाएंगे. जब आपको ये पता है ना कि मैं जो अल्फाज में हकलाऊंगा, तो अब इसको फिर आप कंट्रोल भी कर सकते हो विद फ्लुएंसी टेक्निक.
That's my take on this. So like desensitization is main thing for us, for the adult, कि वो 90% है, प्योर 90%. उसके बाद आप फ्लुएंसी पे काम कर सकते हैं टेक्निक. जब आपको ये डिसेंसिटाइज हो जाओ तो फिर आप उस वक्त बोलो कि हाँ यार आप ये मुझे फ्लुएंसी पे काम. What do you think, Sabrin? जो my take is like that's my opinion. आई थिंक सोशल ग्रुप्स जो है जो कि आप लोग करते हैं ड्यूरिंग स्टैमर सर्कल, इट इज़ अ वेरी गुड एंड वन ऑफ द आइडियल टूल जो कि एक एडल्ट स्टैमरर को, मतलब एक बंदा जो कि स्टार्टअप करता है उसके लिए बहुत हेल्पफुल है. क्योंकि ऑलरेडी ड्यूरिंग द लाइफ, बचपन से टीनेज में जब वो अपनी स्टार्टिंग से अवेयर हो रहा है, अपनी आइडेंटिटी बना रहा है और जो सारे बैगेजेस आ रहे हैं, उसके बाद वो ऑलरेडी नेगेटिव इमोशंस इतने ज़्यादा हो गए हैं. सो ही नीड्स अ ग्रुप ऑफ पीपल हु आर वेरी पॉजिटिव टूवर्ड्स हिज थॉट्स. वो सपोर्ट ग्रुप, वो सपोर्ट सिस्टम जब बनेगा तो वो एक्चुअली आपको हेल्प आउट करेगा ताकि आप जो है, मतलब यू आर ओके विथ व्हाट यू आर. सो एंड आई कंप्लीटली अग्री विथ यू कि अगर आप डायरेक्टली इस चीज़ को हिट डाउन करते हैं एज एन अ डिसेंसिटाइजेशन एंड देन गोइंग ऑन टू द टेक्निक्स जो कि आपको फ्लुएंट बना सकते हैं, जो आई अज्यूम कि आप लोग मजीद आके सेशंस में करेंगे कि कैसे होगा. सो आई थिंक आफ्टर दैट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इवन इन माई एक्सपीरियंस आई फेल्ट कि अगर हम काउंसलिंग ना करें, अगर हम उन्हें इस बात को अवेयर ना कराएं कि इट इज़ ओके, एंड इफ वी डायरेक्टली गो ऑन टू द टेक्निक्स, वो काफ़ी बुरी तरीके से बैकफायर करता है. और शायद वो उस थेरेपी रूम तक तो हो जाता है, क्योंकि थेरेपी रूम में क्या है, यू एज अ पर्सन आर गिविंग वेरी पॉजिटिव रिमार्क्स कि हाँ इट्स ओके, आप कर सकते हैं ये वो. एज सुन एज यू मूव आउट ऑफ द थेरेपी रूम, इट डजंट गो विद दैट. वो ऐसा नहीं होता और फिर वो काफ़ी नेगेटिवली मजीद रिएक्ट करता है. सो आई थिंक सपोर्ट ग्रुप्स, सोशल ग्रुप्स इज़ अ वेरी गुड एंड एक्सीलेंट टूल. तो जो भी आई थिंक आप लोग कर रहे हैं बहुत अच्छा है. और मैं रिक्वेस्ट करूँगी, प्लीज़ हैव दैट फॉर गर्ल्स ऑल्सो. प्लीज़ हैव समथिंग जहाँ पे गर्ल्स भी आ सकें. मिस्टर शिराज, आपको इसका कुछ जवाब देना है? ये थोड़ा सा लाइक हम लोग में ग्रुप्स में गर्ल्स आती हैं, दे आर नॉट रेगुलर मच. हाँ, बट ये कि हमें स्टार्ट करना चाहिए, उसमें हमें वर्किंग करनी है. ठीक है. So there were two things that Miss Sabreen ने बहुत अच्छे point out किए कि number one कि एक support group होना चाहिए जिसमें एक दूसरे को support किया जाए. So even if you look at the comments we have right now, so it's really fascinating कि किस तरह हर कोई एक दूसरे को supporting comments दे रहा है, even though सब अपने problems के साथ हैं, but when one would share their problem, other would support them or give them a certain strategy. और दूसरी बात जो साबरीन ने की कि जब आप रूम से बाहर जाते हैं थेरेपी के बाद, फ्लुएंसी की थेरेपी के बाद, इट्स नॉट गोइंग टू बी द सेम. सो दिस ब्रिंग्स अस बैक टू द आइसबर्ग कि हमारी जो इंटरनल सोच है हमारी बनी हुई है कि अ सर्टेन इवेंट इज गोइंग टू कॉज अ सर्टेन रिएक्शन, जिसकी वजह से एक सर्टेन कॉन्सिक्वेंस आएगा. तो वो जब तक हम बाहर सरफेस पे नहीं लाएंगे या उसको हम चेंज नहीं करेंगे, तब तक हम जितनी भी स्किल्स सीख लें, इट्स नॉट गोइंग टू हेल्प अस फॉर अ लॉन्ग रन. इट विल हेल्प अस फॉर अ वाइल, थोड़े दिन के लिए हम फ्लुएंट हो जाएंगे, बट इन द लॉन्ग रन इट वोंट स्टे मेंटेन्ड. तो हमारा गोल हमेशा मेंटेन रखने के लिए होना चाहिए, नॉट लाइक अ शॉर्ट टर्म गोल. एंड इधर जो उमर ने बात की, उमर फारूक ने, कि being a stammerer is not a stigma. I think this is a really important point जो stutterer को खुद एक समझना चाहिए कि it's not a stigma. लोग जो भी कर रहे हैं, लोग हंस रहे हैं, लोग उसको stigma बनाना चाह रहे हैं, but still we need to be sure about कि ये stigma नहीं है, and then this will make us confident and this will allow us to move forward with what we aim to do in our life. So let's have some concluding comments. हमने क्या क्या बातें डिस्कस की? हमने डिस्कस किया कि सेल्फ अवेयरनेस होनी चाहिए हमारी अपनी स्टटरिंग के लिए. उसके बाद ही हम किसी और को अवेयर कर सकेंगे कि व्हाट इज स्टटरिंग. सो लाइक हैविंग सेल्फ अवेयरनेस कि मैं कहाँ पे अवॉइड कर रहा हूँ, कौन कौन सी सिचुएशंस है जो मुझे फियरफुल कर रही हैं. उसके बाद हमने पीपल्स रिएक्शन के बारे में बात की कि लोग तो रिएक्ट करेंगे हमारे स्टटरिंग पे, बट हाउ
do we handle the situation in our mind is what's more helpful to us rather than thinking कि लोग किस तरह react कर रहे हैं. तो हमने ये बात की कि अलग अलग जो perspectives होते हैं वो हर individual के different होते हैं. So if Miss Sabeen is thinking a certain thing, then it's not necessary कि Mr. Shiraz भी वही बात सोच रहे हो. So everything's going to be different, and to change something within us, we will have to take the responsibility for that. कि हाँ हमें एक आइडिया होना चाहिए कि हाँ we have to change, हमें अपनी सोचें बदलनी होंगी, हमें अपना आउटलुक जो है वो अपनी स्टार्टिंग के लिए वो चेंज करना पड़ेगा. Then we discuss the terms fear and avoidance, how fear is the emotion जो उस situation में होने की वजह से reaction आता है, and then reaction would be avoidance, तो हम फिर उसको avoid करेंगे, हम अपनी speech के forward flow को avoid कर देते हैं because of that fear. So these were the things that we discussed, and I think that's it for today. For all of those who have been asking us about techniques to overcome stuttering, so today we talked about desensitization, और हमारी आगे की मज़ीद कुछ podcast होंगी जो इसी के around revolve करेंगी, and then we'll have a podcast on fluency shaping techniques and therapists किस तरह से therapy के लिए certain techniques बताते हैं, and we'll share some of the techniques with you all. So stay tuned in with us to know more about the topic. And now we also have our YouTube channel. So if you have missed any of our videos, you can always go there and watch a certain video and get educated about it. So thank you, Ms. Sabreen, for joining us today. Thank you for giving us time. And thank you, Mr. Shiraz Iqbal, for everything, for Thank the you all. summer, for managing Thank you, this. Sabika. Thank you, Sabri. Thank you. Thank you. See you guys again. Bye bye. Nafis. Bye. Allah Hafiz.